welcome to my channel R Maths World. Today we see the practice set 3.4 of circle of math part second of 10th standard. Now first example is that the given is in this figure with the center O. It is the circle with center O and length of chord is AB is equal to the radius. It is the main point. Given point is the main point here. The length of AB is equal to the radius of this circle. Find the measures of this. Now we start to solve this example from given part. Given part is AB is equal to the radius in triangle AOB. AOB. What is the measure of AB? AB is equal to OA, OB because the radius. AB is equal to OA is equal to OB. If the three sides of a triangle are congruent, then it is the equilateral triangle. Therefore, the triangle is equilateral. And if the triangle is equilateral, then the measures of each angle is 60 degree. Means the angle O is of 60 degree. This A is of 60 degree, B is of 60 degree. But A is nothing but OAB and B is nothing but OBA. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree. Equilateral angle theorem, or it is the angle of equilateral. Equilateral. The angle of each angle of equilateral triangle is of 60 degree. Means first we find the angle OAB is 60 degree. Then if this angle is 60 degree, then what is the measure of arc AB? Measure of arc AB is also 60 degree because central angle theorem. Because central angle theorem. Measure of minor arc is equal to measure of central angle. What I say? Measure of minor arc is equal to measure of central angle. माइनर आर्क का जो मेजर होता है वो सेंट्रल एंगल के बराबर होता है. किस थ्योरम के तहत? सेंट्रल एंगल थ्योरम के तहत. ये होता है कि जो आर्क है उसका मेजर, माइनर आर्क का मेजर जो होता है वो सेंट्रल एंगल के इतना होता है. इसलिए आर्क ए बी का मेजर आएगा 60 डिग्री. दिस इज द 60 डिग्री, ए बी इज 60 डिग्री. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस ए सी बी? ए सी बी इज द मेजर आर्क. ए सी बी इज द मेजर आर्क. And we know that the measure of major arc is equal to 360 minus measure of minor arc. Here, measure of arc ACB. ACB, this arc means major arc, is equal to 360 minus minor arc. मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क का मेजर कितना आया हुआ है? 60 डिग्री. इज 60 एंड द सब्ट्रैक्शन इज 300 डिग्री. मींस मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 300 डिग्री. दिस इज द, आई थिंक इट इज आर्क ACB. फोर्थ क्वेश्चन. नाउ आर्क AB. आर्क AB का भी हमने यहाँ पर मेजर फाइंड किया हुआ है. मतलब हमने AOB निकाला, ACB रहा क्या? यहाँ ACB भी तो निकाला. आर्क ACB, एंगल ACB निकालना है. सॉरी, एंगल ACB. एंगल ACB means this angle. What is the measure of this angle? This is the inscribed angle, and its measure is half of AB. The measure of C is half of AB. Measure of angle ACB is equal to half of measure of arc AB, and we know that 1/2 into the measure of arc AB is 60. Therefore, its measure is 30 degree. Measure of angle ACB or angle C is 30 degree. In this way, we solve this example. Now,
वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, we want to see the second example of this practice set 3.4. The example is, read this example carefully. Quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. It is important. If it is cyclic quadrilateral, then the opposite angle are supplementary. Means the sum of opposite angle is 180. Means S plus Q is 180. P plus R is also 180. Therefore, here and again, this in this triangle, PQ and RQ are congruent. This example, this information is useful for sometimes to solve any of this problem. Now, to start the solving the problem. Yes. First, we given angle PSR is equal to 110. Angle PSR. PSR means this 110. दोस्तों अगर ये 110 है तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? 70, because the sum of these two angles is 180. Now हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल PSR प्लस इसका लिखेंगे PQR, एंगल PQR दोनों का सम कितना होता है? 180, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। लैटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम के अनुसार जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी सम होती है 180. पुट द वैल्यू ऑफ PSR इज 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180. और देखिए एंगल PQR इज इक्वल टू 180 और दिस 110 इधर जाने को क्या होता है? माइनस होगी. देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री. कितना आएगा वो? 70 डिग्री. हमने पहले लिखा हुआ है लेकिन वो इस प्रकार से यहाँ पर 70 आएगा. अब हमें सेकंड एग्जांपल देखना है. मेजर ऑफ आर्क PQR. हमें PQR फाइंड करना है. दिस मेजर वी वांट टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस PQR. देखिए ये क्या है? इंटरसेप्टेड आर्क है. किसकी? ये एंगल की, ये इंस्क्राइब एंगल की. मतलब हमें पता है एंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क. कौन सी? PQR. क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. क्या लिखेंगे हम? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इस थ्योरम के अनुसार हमें पता है इंस्क्राइब एंगल का मेजर होता है 1/2 इंटू इंटरसेप्टेड आर्क. 1/2 इंटू इंटरसेप्टेड आर्क इज PQR. अब देखिए PSR का मेजर हमें पता है कितना है? 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क विच इज PQR. अब 110 ये 2 अपॉन है, इधर आते वक्त क्या होंगे? वो मल्टीप्लाई होंगे. इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होंगे. इज इक्वल टू व्हाट इज द रिमेनिंग हियर? मेजर ऑफ आर्क PQR. Therefore the multiplication is 220 is equal to measure of arc PQR. मतलब measure of arc PQR is equal to 220 डिग्री. ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा. नेक्स्ट हमें पहला एक मिला हुआ है, ये एक मिला हुआ है, ये सेकंड मिल गया. 2 हो गए हमारे. अब थर्ड एग्जांपल मेजर ऑफ आर्क QR. अब QR कैसे फाइंड करेंगे हम? हमको देखना है ये ट्रायंगल देखेंगे हम पहले. कौन सा? PQR. इन ट्रायंगल PQR हमें ये गिवन है. PQ और QR क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. PQ कॉन्ग्रुएंट QR. अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके जो अपोजिट के एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. बिकॉज द आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम मीन्स इन दोनों के मेजर भी सेम होंगे.
we assume as x both angle. Let therefore एंगल, अब इनका मेजर, इनको कैसे लिखेंगे, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल, ये क्यू आर पी और पी आर क्यू, हमें क्या पी आर क्यू ढूंढना है यहाँ पर, इसलिए मैं पी आर क्यू लिखता हूँ। पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, हमने यहाँ पे एज्यूम किया, एक्स हमने पता किया। अब दोस्तों ये the sum of three angles of triangle is equal to what, 180, means therefore x plus 70 is equal to 180, और x plus x कितना होता है, 2x plus 70 is equal to 180, means 2x is equal to 180 minus 70। अब 2x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2x is equal to 110 and therefore x is equal to 110 upon 2। देखिए ये जैसे प्लस था इधर माइनस हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवीजन हमने किया तो ये आएगा 55, मीन्स x is equal to 55। अब x की वैल्यू 55 आए, x मीन्स पी आर क्यू, हमें एक पता चल गया, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये कौन सा था, पी आर क्यू 4 था, लेकिन हमें क्यू आर अब ढूंढना है। क्यू आर कैसे ढूंढेंगे हम, इसका मेजर भी कितना आ गया, 55। अब इसका जो मेजर होगा वो क्या होगा, इसके हाफ होगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, मीन्स एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क, कौन सी, उसकी इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है, क्यू आर। यहाँ पे लिखता हूं नीचे ताकि आपके समझ में आए। अब आरपी क्यू का मेजर कितना आ गया, आरपी क्यू हमने यहाँ पे एक्स कहाँ पर एज्यूम किया था, यहाँ पर देखो आरपी क्यू यार क्यू पी आर, उसका मेजर कितना एक्स, और एक्स कितना आया 55, मीन्स आरपी क्यू का मेजर कितना आया 55, 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब दोस्तों पिछले जैसा हमने 2 यहाँ पर डिवाइड था, इधर आते वक्त मल्टीप्लाई होगा, वैसा यहाँ पर भी 55 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब देखो दोस्तों इनका मल्टीप्लीकेशन 110 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110। देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार से चारों एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 3.4। द एग्जाम्पल इज क्वाड्रिलैटरल एमआरपी यानी साइक्लिक। पहले तो हमें फिगर निकालनी होगी कि वो जो क्वाड्रिलैटरल है वो साइक्लिक है, मीन्स उसके जो वर्टाइसेस है वो ऑन द सर्कल है। हम इस प्रकार से फिगर निकालेंगे, एम आर पी एन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इसमें आर का मेजर दिया हुआ है हमें कितना है 5x माइनस 13, और एन का भी है 4x प्लस 4। अब देखिए दोस्तों हमें इनका मेजर फाइंड करना है, आर और एन का। एक्स में दिया हुआ है, हमें इनका एक्चुअल मेजर होना है। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ये सप्लीमेंट्री होते हैं अपोजिट एंगल्स, कौन से क्वाड्रिलैटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। क्यों, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम
थ्योरम। अब इसके अनुसार आर का मेजर लिख लेंगे, कितना है 5x माइनस 13 प्लस n का 4x प्लस 4 और दोनों की सम कितनी है 180। अब देखिए दोस्तों 5x प्लस 4x मीन्स 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस प्लस अगर है माइनस 13 प्लस 4 माइनस प्लस अगर है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होती है, एक का साइन माइनस है एक का साइन प्लस है, तो ऐसे वक्त वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है और आने वाले सब्ट्रैक्शन को जो बिगर नंबर होता है उसका साइन लगता है। मतलब 13 माइनस 4 इज 9 एंड विच इज बिगर between the both 13, the sign of 13 is minus, therefore the sign of 9 is minus is equal to 180। अब दोस्तों देखिए 9x is equal to 180 और ये माइनस 9 उधर जाते वक्त क्या होगा प्लस, और therefore 9x is equal to इनकी सम कितनी होगी 189, x is equal to 189 upon 9 because this is multiply, therefore it is divide and division हम देखेंगे 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 1 जार 9 means x is equal to 21। x मिला है हमें मेजर निकालना है, कौन से पे निकालना है, एंगल r का निकालना है। एंगल r is given as 5x माइनस 13, कितना है वो 5x माइनस 13। अब x की वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे, एंगल r इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x वी राइट 21। x की वैल्यू कितनी है 21 है, इसलिए x की जगह पे क्या रखेंगे 21 माइनस 13। अब देखिए एंगल r इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज 105 माइनस 13। देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 105। एंगल R इज इक्वल टू इनकी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा 105 माइनस 13। देखिए 5 माइनस 3 इज 2, 0 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ पे हम क्या करें 10 में से 1 गया 9, ये आएगा 92 डिग्री। R का मेजर हमें मिल गया। अब हमें किसका मेजर निकालना है N का। एंगल N इज इक्वल टू व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल N 4x प्लस 4। Now put the value of x. What is the value of x? The value of x is 21. Means हमें कुछ भी बदल नहीं करना है, जो है वो लिखना है 4, केवल x की जगह पे क्या लिखना है 21 और ये 4 as it is। Therefore angle N is equal to इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 21 into 4 is 84 plus 4 is equal to 88। एंगल N इज इक्वल टू 88। इस प्रकार से हमें दोनों के मेजर मिलेंगे, दोनों एंगल के मेजर हमें प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अगला एग्जाम्पल। हमें दिया हुआ है एक फिगर दी हुई है, ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में उस जो जानकारी दी हुई है उसके आधार पर हमें यहाँ पर प्रूव दैट quadrilateral WZPT is cyclic। WZPT means this and quadrilateral is cyclic। cyclic quadrilateral है हम बताना। cyclic quadrilateral की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी सम होती है 180, वही हमें यहाँ पर बताना है। अगर हमने बता दिया कि इनकी सम 180 है अपोजिट एंगल की, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वही हमें बताना है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ दिया हुआ है सेगमेंट ZY परपेंडिकुलर टू दिस WX और सेगमेंट XT परपेंडिकुलर टू WY। अब ये दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल WZP, देखिए कौन सा एंगल ये WZP और WTP, ये दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। अब दोस्तों हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो
4 एंगल्स होते हैं उनकी सम होती है 360। मीन्स देयरफॉर एंगल W प्लस ये जेड का कैसा लिखेंगे, WZP प्लस P का भी कैसा लिखेंगे, ZPT प्लस चौथा एंगल T वो कैसा लिखेंगे, WTP और इनकी सम आएगी 360। बराबर है। अब इनके मेजर्स रखेंगे, W का पता नहीं, WZP कितना है 90, ZPT पता नहीं, प्लस WTP कितना है 90 इज इक्वल टू 360। अब देखिए दोस्तों, एंगल W प्लस एंगल ZPT प्लस ये 90 प्लस ये 90 कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 360। देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल ZPT मीन्स P एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ये कितना आएगा देखिए। देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल ZPT इज इक्वल टू 180 आएगा। बराबर है दोस्तों। अगर W और ZPT है तो अपोजिट एंगल है और इनकी सम कितनी आ गई 180, मीन्स they are supplementary, and if they are supplementary then this quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Therefore quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. इसे रीजन भी लिखना है दोस्तों, हमें रीजन क्या लिखना है, कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। हमें उसके कॉन्वर्स के अनुसार ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। वी प्रूव दिस फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, एक लाइन है XY और XY के एक ही साइड में Z और T है और Z एंगल कितना है देखो, एंगल Z मीन्स XZY, इसके लिए देखना है XZY कितना है 90 और ये भी XTY इज इक्वल टू 90। दोनों 90 मीन्स दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, दोनों के मेजर सेम है इसलिए। और जब कोई लाइन के एक ही बाजू के, इफ द एंगल्स टू द वन साइड ऑफ अ लाइन are congruent, then they are the concyclic. Therefore X क्या ZTY are concyclic because the angles to the one side of a line are congruent, then the points are concyclic। इस प्रकार से हमें दोनों प्रूफ यहाँ पर दिए हुए हैं। हम देखने जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। Dear friends, we want to see the sixth example of practice set 3.4. The example is given. The measure of arc NS is 125. The measure of arc NS is 125 is given. Measure of arc EF is also given 37 degree. And find the measure of NMS, angle NMS. NMS means M angle. दोस्तों
इंस्क्राइब एंगल थ्योरम मालूम है हमें कि इंस्क्राइब एंगल का जो मेजर होता है वो 1/2 इंटू इंटरसेप्टेड आर्क। यहाँ उसी का सब करोलरीज है, उसका उपयोग करना है कि अगर इंस्क्राइब एंगल की जगह वो एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर होगा। इफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज आउटसाइड द सर्कल, then what is the measure of this angle? The measure of this angle is nothing but the half of subtraction of these two arcs. Half means 1/2 into measure of arc. बड़ी आर्क जो है वो पहले लिखना है NS माइनस छोटी EF। अब वैल्यू रखना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ एंगल M फाइंड करना है जैसे कि वैसा 1/2 इंटू NS का मेजर कितना दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क NS इज 125 माइनस EF का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 37। अब देखिए दोस्तों 1/2 इंटू इनकी सब्ट्रैक्शन करना है, 5 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं, टेकिंग कैरी ऑन 15 माइनस 7 इज 8, कैरी ऑन रिटर्न 4, 12 माइनस 4 इज 8, 88, देयरफॉर द सब्ट्रैक्शन इज 88, 1/2 इंटू 88 और 1/2 इंटू 88 ये आता है 44। देखिए 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 मीन्स दिस इज 44 डिग्री। एंगल M हमें मिला 44 डिग्री, मीन्स एंगल M मीन्स NMS उसको एक्सटेंड करना है 44 डिग्री। इस प्रकार से हमने ये पहला एग्जांपल सॉल्व किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ M जो था वर्टेक्स सर्कल के बाहर था, अब यहाँ B दिया हुआ है, सेम है, यहाँ दो चार्ट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है B में, तो जो एंगल का वर्टेक्स होगा वो सर्कल के अंदर होगा। जब सर्कल के अंदर वर्टेक्स होता है हमें दिया हुआ है एंगल ABE 108, दिस मेजर ऑफ दिस एंगल इज 108 एंड मेजर ऑफ आर्क AE इज 95, ये 95 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DC, तो हमें जो दिया हुआ है उससे शुरुआत करनी है ABE 108 ABE। यहाँ मैंने क्या कहा कि अगर वर्टेक्स बाहर है तो सब्ट्रैक्शन करके हाफ, और अगर वर्टेक्स अंदर है तो एडिशन करके हाफ, मतलब 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क AE प्लस DC, AE प्लस DC, और AB का मेजर है 108, 1/2 AE का मेजर है 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC 108, ये अपॉन 2A इधर मल्टीप्लाई होगा इनटू होगा इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC बिकॉज 2 इज हियर। देन इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो 216 और 95 प्लस है वो इधर आते वक्त क्या होगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC। और देखिए दोस्तों इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगी 121 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 121। हमें यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, अगर वर्टेक्स बाहर है तो सब्ट्रैक्शन, दोनों आर्क की सब्ट्रैक्शन करके हाफ, इसका मेजर बराबर दोनों आर्क के सब्ट्रैक्शन का हाफ। अगर वर्टेक्स अंदर है तो हाफ करना है लेकिन एडिशन का करना है, सम का करना है इनका। अगर हमें ये एंगल लेना होता तो ये प्लस ये उसकी हाफ लेना पड़ती, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, ये एंगल लेना है, तो ये एंगल उसका जो आर्क है वो प्लस उसके अपोजिट आर्क, दोनों की सम अपॉन 2। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।